the whole world into three parts: core, periphery and semi-periphery. He has provided various characteristics of each one of them. Core are those countries where higher level of industrialization have been achieved, generally G7 economies or OECD countries which have higher standard of living, higher industrialization. They are generally, they are basically exporting services. मतलब basically their economy is based upon services. So high technological base they have. देखते हो सब important जो टेक्नोलॉजी है वो उनके यहाँ आता है. They have good, means they are economically very much powerful. They have military power. Okay, so core countries have these characteristics. Okay, then come another is semi periphery. Semi periphery वो use करता है किनके लिए? Emerging economies like India. Do you remember I already took one lecture on swing states के बारे में. So swing states, other than China, swing states are also emerging states. They have good potential. Over a period of time, their economic growth would go up. So emerging economies, developing countries. We often talk about India as a developing countries. Developing countries, BRICS. All 5 nations of BRICS. Bridge. So they are like a bridge between core and periphery, and they have good manufacturing base. Like China is right now considered as the manufacturing powerhouse of the world. Another important कॉन्सेप्ट इज पेरीफेरी. पेरीफेरी किसके लिए वो यूज करता है? लिस्ट डेवलप्ड स्टेट्स के लिए. लिस्ट डेवलप्ड स्टेट्स और लिस्ट डेवलपिंग स्टेट्स, यूडीसी. यस, अंडर डेवलप्ड स्टेट्स. अंडर डेवलप्ड स्टेट्स, दे आर जनरली प्राइमरी प्रोड्यूसर, रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर्स. लाइक कॉन्गो, टेक वन एग्जांपल, नाइजीरिया. सो दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर. दे डू नॉट हैव टेक्नोलॉजिकल बेस. उनके पास टेक्नोलॉजिकल बेस नहीं है. दे आर रादर डिपेंडेंट ऑन कोर एंड सेमी पेरीफेरी टू हैव proper technology. Are you getting? तो ये जो है, now this is how Wallerstein describes. See, from core basically they import what? Labor and raw material from periphery at very cheap rate, and in response send high technology finished goods to periphery. मतलब कि peripheral countries they provide cheap raw material, cheap labor to core country, and in return they get high technology finished goods. अब प्रॉफिट ज्यादा कहां है? खुद बताओ. रॉ मटेरियल में ज्यादा प्रॉफिट है कि हाई टेक्नोलॉजी फिनिश्ड गुड्स से? सो अकॉर्डिंग टू वॉलरस्टीन, दिस इज हाउ कोर इज एक्सप्लॉइटिंग पेरिफेरी. ओके, अनदर इंपॉर्टेंट कंसेप्शन विच ही गेव, समझो सेमी पेरिफेरीज. सेमी पेरिफेरीज को क्या करता है? सेमी पेरिफेरी ऑल्सो प्रोवाइड रॉ मटेरियल, लेबर प्लस स्किल्स टू कोर. अब इंडिया से जाते हैं ना बहुत सारे लोग, दे गो टू यूएसए टू वर्क इन देयर सर्विसेज सेक्टर. सो semi-peripheries are like the source of raw material, labor and skill. In return, core countries also provide them high technology finished goods. Okay. Then in addition to that, देखो core countries में what is happening कि वहाँ due to good environmental standards, तो वहाँ पे वैसे बहुत सारे manufacturing sectors हैं जिनको हटा दिया गया. They are now not allowed to run. So they have now shifted their manufacturing base in some of the developing countries. अब ये तुम पूछ सकते हो कि सर पेरिफेरल में क्यों नहीं किए? यहां तो और सस्ता पड़ेगा, यही क्यों किए? बिकॉज वॉलरस्टीन क्या बोलते हैं? अब व्हाई? No, it's not lack of technology only. Stability. Most of these semi-peripheral states are stable states. Though they are poor, but there is a government over there who can manage order and security. Are you getting? Law and order यहाँ पे maintain रखना is easy than this. So core countries are shifting their manufacturing base from core to semi-peripheries. Okay. Then another important is periphery. So semi-periphery are also, according to Wallerstein, they are also now behaving like core. अब ये क्या कर रहे हैं? Core इनको exploit करता है, and semi-peripheries are exploiting peripheries. How? They also get raw material and labor at a cheap cost from periphery. In return, semi-peripheries are selling low-level technological goods to them. Are you getting? So they have also started extracting or taking advantage of the situation of the periphery. So this is the spatial dimension of capitalism. Now, Immanuel Wallerstein is a big critique of semi-periphery. कोर समझ गए? कोर आर हाईली डेवलप्ड टेक्नोलॉजिकल स्टेट्स, जो कि OECD G7 हुआ. नाउ ही इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल ऑफ सेमी पेरिफेरी. अब देखो, ही इज अप्लाइंग मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल एट इंटरनेशनल लेवल. इंटरनेशनल लेवल पे वो मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहा है. नाउ सी व्हाट ही सेज. अकॉर्डिंग टू हिम कि यहां पर ट्रेड यूनियंस और लेबर यूनियंस वुड हैव डन रिवॉल्यूशन इफ सेमी पेरिफेरी वुड नॉट हैव बीन देयर. Since semi-periphery are there, so semi-periphery are like working like a sponge. वो
वहां कॉन्सेप्ट आ जाओ उसमें, ग्रामसी का कॉन्सेप्ट, दे आर वर्किंग एज लाइक अ स्पॉन्ज, सो दे आर नॉट लेटिंग द, अब यहां से फायदा क्या हो रहा है कि नाउ दे आर शिफ्टिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग बेस ओवर देयर, सो इनके लेबर को दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड देयर एक्सप्लॉयटेशन. सो सेमी पेरिफेरी is like saving the capitalism from becoming extinct. Understood? सेमी पेरिफेरी के बारे में वो एग्जैक्टली यही लिखता है कि दे एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, they act as a shock absorber. Whatever issues they would have faced had semi periphery would not have been there, those issues they are not facing. More importantly, वो क्या बोल रहे हैं कि सेमी पेरिफेरी, वो अभी तो बताया कि he was a big critic of semi periphery. Semi periphery is also acting like core. They have started exploitation of periphery like core itself. अब वहां से वो भी रॉ मटेरियल, जो सेमी पेरिफेरी कंट्रीज हैं लाइक इंडिया, वो जो हैं they also get raw material from there, they also get cheap labor from there, and then they provide low level technological goods to them. Are you getting? तो यही उनका वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी का ये, दिस इज द स्पेशियल डायमेंशन. नाउ अंडरस्टैंड, आगे इसको लिखवाऊंगा. नाउ अंडरस्टैंड द टेम्पोरल डायमेंशन ऑफ इट. टेम्पोरल डायमेंशन जो है, टेम्पोरल डायमेंशन ऑफ इट, टेम्पोरल डायमेंशन में देयर आर टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. उसी समय बताया था. द फर्स्ट वाज व्हाट? फर्स्ट वाज, जल्दी बताओ, अभी तो बताया टेम्पोरियल डायमेंशंस में, टेम्पोरल डायमेंशन में दो चीजें बताया तो यस, क्या है? वन इज साइक्लिकल एंड अनदर इज सेकुलर ट्रेंड. नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज साइक्लिकल ट्रेंड एंड व्हाट इज सेकुलर ट्रेंड. हां, ये स्पेशल डायमेंशंस में हो जाएगा, ये टेम्पोरल डायमेंशन में जाएगा सेकुलर ट्रेंड. नाउ पहले ये समझो रश्मि, हरिओम, ऑल क्लियर? प्रेम समझ में आ रहा है बाबू? सो पहले ये समझो साइक्लिकल ट्रेंड मींस व्हाट. सी, क्या बोलते थे वहां पे, याद करो उनको, मार्क्स को, कि जो कैपिटलिज्म है इट सफर्स फ्रॉम दिस थिंग, बूम एंड बर्स्ट, देयर इज अ साइकिल. तो सेम चीज ही ऑल्सो आर्ग्यू कि कैपिटलिज्म जो है, ग्लोबल कैपिटलिज्म ऑल्सो पासेस थ्रू द फेज ऑफ बूम एंड बर्स्ट. एक बार ऊपर जाएगा, एक बार नीचे आएगा, एक बार ऊपर जाएगा, एक बार नीचे जाएगा, समथिंग लाइक दैट. सो दिस इज अ साइक्लिकल ट्रेंड, दिट इज नथिंग न्यू, ये कैपिटलिज्म में होगा. Another important argument which he puts forward, Wallerstein, is secular trend. अब समझो कि secular trend होता क्या है. Try to understand. According to him, किसके द्वारा? Wallerstein बोलता है कि secular trend is basically, secular trend shows the permanent contradiction in capitalism. याद करो, मार्क्स क्या बोलते हैं? Capitalism dig their own graves because capitalism is based upon profit. अब समझो ये क्या बोल रहे हैं. Secular trend का मतलब क्या है? Secular trend means, see, you need profit na, but at the same time you also need to expand your production base. Ab in order to increase your production base, what you would want? You would want people to buy more. Log खरीदेंगे ज़्यादा. When people will buy more, so there would be more demand for your good, right? But when people will buy more, it means people require more purchasing power. लोगों के पॉकेट में पैसा तो होना चाहिए. बिना मनी का हनी कैसे खरीदोगे, है ना? यू नीड मनी टू बाई हनी, राइट? तो मनी मनी मनी, सो पॉकेट में पैसा होगा, राइट? सो यू नीड मनी. अब परचेजिंग पावर बढ़ने का मतलब क्या है? इट मींस कि यू नीड टू इंक्रीज लेबर, वेज लेबर, है ना? अब वेज लेबर बढ़ेगा, सो प्रॉफिट वुड कम डाउन और प्रॉफिट वुड गो अप. प्रॉफिट वुड कम डाउन. So that is how he describes secular trend. He like Marx, he also says कि capitalism also suffers from long term contradiction. So ये दोनों जब मिल जाएगा, this cyclical trend and secular trend, overall they would create a situation when capitalism cannot proceed further. अब आगे कैपिटलिज्म जो है वो प्रोसीड नहीं कर सकता है, एंड कैपिटलिज्म इज लाइक, अकॉर्डिंग टू हिम, ये वॉलरस्टीन के हिसाब से कैपिटलिज्म हैज ऑलरेडी रीच्ड टू इट्स डेड एंड. वो बोलता है ना, याद है वहां पे बताया था व्हेन आई वाज डिस्कसिंग मार्क्सिज्म में, कि ही डिस्क्राइब्स कैपिटलिज्म एज अ स्वान सॉन्ग. ग्लोबलाइजेशन इज लाइक अ स्वान सॉन्ग, लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म. यही वो वर्ल्ड सिस्टम में डिस्क्राइब करता है. दिस इज व्हाट ही डिस्क्राइब्स. इसके सबसे बड़े क्रिटिक जो हैं विदिन द सेम मार्क्सिस्ट स्कूल, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट स्कूल, उसी में एक इंपॉर्टेंट क्रिटिक है, उनका नाम है चेज डन. Chase Dunn as well as
अनदर इंपॉर्टेंट क्रिटिक इज रॉबर्ट कॉक्स। रॉबर्ट कॉक्स, इन दोनों के बारे में पढ़ाऊंगा, पहले इसके बारे में राइट डाउन, ठीक है? पहले लिखिए पूरा वर्ल्ड सिस्टम है क्या, जानिए, एंड देन विल स्टार्ट, ठीक है? देन विल प्रोसीड फर्दर। सब समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? थर्टी टू 43 काउंटेड, ये वाला वर्ल्ड सिस्टम का ये इतना सा जो कॉन्सेप्ट है वो यूट्यूब पर डाल देना, क्योंकि बहुत बच्चों को ये हेल्प करेगा। हाँ, 32 42 43 31 या 30 के आसपास होगा, टू 42 43, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? लिखो इमैनुअल वॉलरस्टीन, इसका पहले आगे ये बनेगा डिफरेंट थंबनेल, जिसमें वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी ऑफ वॉलरस्टीन लिख देना, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी ऑफ वॉलरस्टीन लिखिए। इमैनुअल वॉलरस्टीन डिस्क्राइब्स following features of world system, following features of world system लिखो। According to him, the present world system has both temporal and a spatial dimension. The present world system has both temporal and a spatial dimension. Temporal and a spatial dimension. अब पहले लिखो a spatial dimension. A spatial dimension. SPATIAL. A spatial dimension. स्पेशल डायमेंशन में याद रखिएगा ये वाला जाएगा, ये वाला जब एग्जाम में कीजिएगा, सो कीप इन योर माइंड, अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, सो इसको ध्यान में रखेंगे कि ये बनाकर जाना है। ओके, 20 मार्क में ये बनाकर जाइएगा, ठीक है? लिखिए डिस्क्रिप्शन, पहले इसका लिखो डिस्क्रिप्शन। पहला लिखिए कोर कंट्रीज। कोर कंट्रीज, core countries represents concentration of power. They are highly advanced and have high technological bases, comma, economically very sound and militarily powerful, ठीक है? वेरी साउंड एंड मिलिटरीली वेरी पावरफुल। फुल स्टॉप के बाद लिखो वॉलरस्टीन कीप्स G7 and OECD. Wallerstein keeps OECD and G7 as part of core. ठीक है? सेकेंड पॉइंट लिखो, मतलब इकोनॉमिकली बहुत साउंड है, बहुत पावरफुल है, इतना आसानी से वो गिरेगा नहीं। अमेरिका ये सब को नहीं देख रही हो, इकोनॉमिकली हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लिखो सेकेंड पॉइंट। अब कोर के बाद पेरीफेरीज लिखो। वॉलरस्टीन पेरीफेरी पहले लिखो, पेरीफेरीज पहले जो था ना, पहला जब वो डिस्क्रिप्शन दिया था तो वो सिर्फ कोर और पेरीफेरी का दिया था, बाद में सेमी पेरीफेरी हैज बीन एडेड। ओके, सो लिखो पेरीफेरीज। ही कॉल्स पेरीफेरीज एज डिपेंडेंसीज, most of these countries are post-colonial countries, and currently they are known by the name like LDCs, least developed countries. They are primary producer in the global economic chain.
इन दी ग्लोबल इकोनॉमिक वैल्यू चेन कर दो, इन दी ग्लोबल इकोनॉमिक वैल्यू चेन, ठीक है। थर्ड लिखिए सेमी पेरिफेरीज, सेमी पेरिफेरीज, सेमी पेरिफेरीज आर अ ब्रिज बिटवीन, are a bridge between core and periphery, core and periphery. वॉलरस्टीन, ऐसे वॉलरस्टीन ने ये यूज कहीं नहीं किया है कि ब्रिक्स इज अ पार्ट ऑफ सेमीफेरी, लेकिन अभी जो हम लोग जान रहे हैं उसके आधार पर लिख रहा हूं। लिखो ब्रिक्स, ब्रिक्स एंड स्विंग स्टेट्स, मोस्ट, ऐसे लिखो ब्रिक्स एंड स्विंग स्टेट्स कैन बी कॉल्ड एज पार्ट ऑफ semi periphery, can be called as part of semi peripheries. इनका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखिए। some countries in peripheries, some countries in periphery which had some sort of industrial base, which had some sort of industrial base, some amount of industrial base, some amount of, या some sort of industrial base, some amount of a skilled manpower, some amount of a skilled manpower have emerged as semi periphery, semi periphery. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो वॉलरस्टीन, वॉलरस्टीन इज अ बिग क्रिटिक ऑफ, वॉलरस्टीन इज अ बिग क्रिटिक ऑफ सेमी पेरिफेरल स्टेट्स, सेमी पेरिफेरल स्टेट्स। अकॉर्डिंग टू वॉलरस्टीन, according to Wallerstein, they act as a shock absorber, they act as a shock absorber for core countries, for core countries, full stop। लिखिए had these countries not existing, had these countries not existing, capitalism would have faced, had these countries not existing, capitalism would have faced serious challenges, because of growth of organized movements, because of growth of organized movements of workers and environmental movements in core, environmental movements in core। समझ रहे हो क्यों होता है environmental movements? ये देखो कोर को तो अभी एक नया जगह मिल गया है ना जहां वो मैन्युफैक्चरिंग बेस सेट कर सकते हैं, पेरीफेरी में वो जाएंगे नहीं क्योंकि वहां पर ऑलरेडी सिक्योरिटी का इशू है। समझ रही हो रश्मि? यहां पर गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है तो यहां पर वो इन्वेस्ट करेंगे, डर रहेगा, आर गेटिंग? तो दे वुड नॉट इन्वेस्ट। तो इनको मैन्युफैक्चरिंग बेस अगर सेमी पेरीफेरी नहीं होता सो दे वुड हैव टू कीप देयर मैन्युफैक्चरिंग बेस ओवर हियर। अब मैन्युफैक्चरिंग बेस यहां रखेंगे तो पॉल्यूशन बढ़ेगा, सो एनवायरमेंटल मूवमेंट होता कि नहीं वहां? दिस इज व्हाट इट मींस दे आर आर्ग्यूइंग। तो हो रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लिखो दे प्रोवाइडेड आउटलेट, they provided outlet for wuzba of core countries, for wuzba of core countries. They provided space for establishing manufacturing base and industry of core countries. They also provide raw material and cheap skilled workers, They also provided a space
they also provided a space for the use of outdated technologies, considering poor environmental regulation, in developing countries, poor environmental regulations in developing countries नहीं लिखो, in semi periphery लिखो, in semi peripheries. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा आगे, these countries are bad for both. These countries are bad for both workers in core countries, as well as poor in peripheries. There's poor in peripheries. Even semi-periphery have started exploitation of peripheries. समझ में आ रहा है? हाँ? तो ये सबसे बड़ा क्रिटिक किसका था? सेमी पेरिफेरीज का. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए टेम्पोरल डायमेंशंस. समझ में आया रश्मि? पैसा भी तो चाहिए, बिलियन डॉलर्स लोग लगाते हैं एक एक चीज में. तो आपके पास रहेगा तब तो करोगे यार, क्यों नहीं है तो कहां से निकालो ना. तो खाते हैं तो उसको निकालो. अब वो कैसे तुमको पता है कि कौन खा रहा है कौन नहीं खा रहा है? तो अब वही बात है ना, तो अब उससे कैसे लड़ोगी? लड़ो, पॉलिटिक्स में जाओ, देखो सुधार लो. लिखो चलो टेम्पोरल डायमेंशन लिखो. अभी फोकस हम लोग करेंगे कहां? वॉलरस्टीन भाई पे. ठीक है, लिखो एवरी वर्ल्ड सिस्टम grows and ends. World system reflects following temporal dimensions. 30-31 से पूरा अभी तक कर ही देना. जो बच्चे देखेंगे अपना नोट भी कर लेंगे. ठीक है, अगर देखेंगे तो. हाँ, फॉलोइंग टेम्पोरल डायमेंशंस. नहीं 30 मिनट से. अरे जो टॉपिक सब अलग अलग है ना, सेग्रीगेटेड टॉपिक डालना ठीक है ना. लिखो पहला साइक्लिकल रिदम. हाँ, 31 या 32 से स्टार्ट हुआ है वर्ल्ड सिस्टम. साइक्लिकल रिदम, फर्स्ट पॉइंट साइक्लिकल रिदम, दैट इज साइकिल ऑफ बूम एंड बर्स्ट. सेकेंड secular trend. For Wallerstein, secular trend represents contradictions. In capitalism. लिखिए, his conception of secular trend is inspired from Marx's seminal idea that is capitalism dig their own graves. या capitalist dig their own graves. Marx's seminal idea of capitalists dig their own grave. ठीक है, लिखिए फुल स्टॉप. Increase in production requires increasing purchasing power. Increase in production requires increasing purchasing power. Increasing purchasing power requires higher wages. Increasing purchasing power requires higher wages. Higher wages
Higher wages means lower profit for capitalists. Lower profit for capitalist. ठीक है. थर्ड स्टेज, अब ये दोनों को मिलके साइक्लिकल एंड सेकुलर ट्रेंड दोनों मिलके थर्ड स्टेज इज क्राइसिस स्टेज. अब लिखो क्राइसिस स्टेज. क्राइसिस स्टेज, कैपिटलिज्म का क्राइसिस स्टेज. ये सेकुलर एंड साइक्लिकल रिदम दोनों मिलके नाउ क्राइसिस स्टेज स्टार्ट होगा. अब लिखिए क्राइसिस स्टेज. लिखिए साइक्लिकल रिदम and secular trend, cyclical rhythm and secular trend reach to a situation when capitalism या कैपिटलिज्म की जगह सिस्टम लिख लो क्योंकि वर्ल्ड सिस्टम की बात कर रहा है ना. when system cannot continue further and it collapses. According to Wallerstein, globalization is the swan song. Globalization is the swan song of capitalism. Swan, SWAN, swan song of capitalism. According to him, the present system is in crisis. The present system is in crisis and world system is reaching to its end. And world system is reaching to its end. ठीक है. इस बार फ्राइडे या थर्सडे को 4 बजे से जो क्लास होगा अगले सप्ताह, तो वो आधा से 1 घंटा ऑनलाइन चलेगा एंड देन विल कम टू ऐप पर. ऑनलाइन भी होगा आधा पौन घंटा यूट्यूब पे, उसके बाद शिफ्ट करेंगे इधर. आई विल बी डिस्कसिंग वेदर इंडिया कैन बिकम चाइना और नॉट. इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, हॉट टॉपिक है. डिस्कस करेंगे क्या क्या उसमें इश्यूज आएंगे, क्या होगा. सो दैट वुड गो फॉर ऑनलाइन कंजम्पशन ऑल्सो एट द सेम टाइम फॉर यू ऑल्सो. वो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. और उसके बाद फिर हम लोग इधर शिफ्ट होंगे. थर्सडे फ्राइडे में बता दूंगा. ठीक है. हाँ, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो तुम लोग को पढ़ाऊंगा वो मैं चाहता हूं कि ज्यादातर ऑडियंस को भी मिले. और कोई बात नहीं, वो तुमको पढ़ाना चाह रहा हूं तो मैं चाह रहा हूं कि उनको भी मिले. क्योंकि हाँ, वो रिकॉर्डिंग में एक जगह रहेगा ना. हाँ रहेगा. लिखिए क्रिटिकल इवैल्यूएशन. लिखो वर्ल्ड system theory is criticized. World system theory is criticized for its economic reductionism. As it reduces the entire explanation to one factor, that is capitalism. है ना. So इसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक. मार्क्स was also considered as an economic reductionist, right? So he is also considered as an economic reductionist. अब ये जो आइडिया है इसका इंस्ट्रूमेंटलिस्ट स्कूल का, डिपेंडेंसी स्कूल का, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रिडक्शनिज्म, चेज डन इज ट्राइंग टू वंस अगेन रिवाइज. चेज डन इज ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट अदर देन इकोनॉमिक फैक्टर, अदर फैक्टर्स ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड दिस होल थिंग. ठीक है. सो लिखिए आगे, राइट डाउन. लिखो आगे. इन रिसेंट टाइम्स, पहले लिखो. इन रिसेंट टाइम्स चेज डन is trying to focus more upon political and military dimension, and not just economic dimension behind political events. देखो जो वॉलरस्टीन जो है ना रश्मि, he is explaining everything from one perspective.
इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। चेज डन क्या कर रहे हैं कि ही इज टेकिंग इकोनॉमी एज द बेस। चलो इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम ही इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस वर्ल्ड सिस्टम थ्रू पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड अदर एंगल्स ऑल्सो। अंडरस्टूड? बिकॉज दिस थ्योरी हैज बीन क्रिटिसाइज्ड एज इकोनॉमिक रिडक्शनिस्ट थ्योरी। सारा का सारा एक ही फैक्टर को इन्होंने रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया है, सिंगल फैक्टर। कौन सा फैक्टर? इकोनॉमिक फैक्टर। सो चेज डन क्या कह रहे हैं कि ओके इकोनॉमिक factor is important, but at the same time we need to analyze political factor, we need to analyze social factor, we need to analyze other factors. ठीक है? Done?